Hello and welcome to the Sports Box. And today we're going to discuss something which is really different. आज तक we've spoken about football, cricket और हमने बोला था हम और भी स्पोर्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. बट आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो प्रॉपरली स्पोर्ट्स में तो कैटेगराइज नहीं किया जा सकता. But it's called sporting entertainment, and any of you who grew up in the 90s will definitely know who Undertaker was. And उनके बारे में जो बचपन में चीजें बोली जाती थी, वो 7 बार मरे, बहुत सारे रूमर्स फैले जाते थे. And the reason we are doing this video today is because उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है. And 30 साल से he was in the profession. And I know जिस हिसाब से लोग WWE को देखते हैं, they say it's fake and all of that. Obviously it is fake, everything is scripted, but at the end of the day जो वो रिंग में परफॉर्म करते हैं, that is not fake. जो उनको इंजरीज होती है, that is not fake. So it's sort of sporting entertainment. हमने बोला कि शायद सोचा कि शायद थोड़ा अलग हो सकता है. It may not be relevant to everyone, but just because of the love we had for the character, the man, हमने सोचा कि आज उनको एक ट्रिब्यूट तो देना चाहिए. एंड मेरे साथ है साहिब, who's a big time wrestling fan, एंड वो बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और अभी तक फॉलो कर रहे हैं. बिकॉज मेरे जैसे काफी लोग हैं जो जब से वो एटीट्यूड एरा खत्म हुआ और सारे रॉक, स्टोन कोल्ड, ये जो हमारे फेवरेट रेसलर्स थे वो रिटायर हुए, तो इतना फॉलो नहीं कर रहे. बट साहिब आज की डेट में भी रिटायर, आई मीन फॉलो कर रहे हैं. सो लेट्स जस्ट हैव अ वर्ड फ्रॉम साहिब कि उनको, मतलब एक तो ऑब्वियसली आई एम श्योर जब वो डेब्यू हुए थे, आप पैदा हुए थे आई थिंक उस साल में, तो फर्स्ट मेमोरी से जब आपने रेसलिंग देखना शुरू किया था और तब से लेके अब तक आपको क्या लगता है? So, Prithvi Undertaker, better known by his name Mark Calaway, नहीं, he actually I'll just stop you there. It's Mark Calloway, better known as his name, The Undertaker. better known. But why I used that way was because people don't know the real Mark Calaway. They know him as Undertaker. और लास्ट 30 सालों से उनकी आइडेंटिटी एज अंडरटेकर ही रह गई थी बिकॉज ही वाज सो मच इनटू द कैरेक्टर. So many people they don't know the real taker which is Mark. उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है. बट जो इनकी जो अभी जो डॉक्यूमेंट्री आई है WWE की ऐप पे, द लास्ट राइड, उसमें यू गेट रियली गुड इनसाइट्स अबाउट द रियल taker which is Mark. How he used to how he was the ड्रेसिंग रूम लीडर. कैसे उन्होंने अपनी 30 years के करियर में कितनी इंजरीज सही, एंड ही गेव इट हिज ऑल टू द बिजनेस. सो अगर आपने ट्विटर पे भी, यहाँ पे यूएस में ट्रेंड था, ही वाज ट्रेंडिंग द डे हिज द लास्ट, जब उनकी 5th एपिसोड में उन्होंने इन द डॉक्यूमेंट्री ही हैज said that he is like retiring for good because there is nothing much for him to achieve. So it's a, what do you say, there can't be any other taker, there can't be any other character, to be very honest. Undertaker का जो character है, I think there is no character which is even like can come close to his character. ऑब्वियसली अभी करंट अगर आप सिनेरियो में देखो तो जो ब्रे वायत है, ही हैड कम अप विद द फील्ड कैरेक्टर, जो कि थोड़ा बहुत डरावना और थोड़ा बहुत इज ऑन द सेम लाइंस ऑफ टेकर. बट अगेन ही इज नॉट, ही इज डेफिनेटली गुड ऑन माइक प्रोमो कटिंग स्किल्स में, बट he has a long way to go. He's just like 5-6 years old in the wrestling business. But yeah, talking about my first memory of Taker, I clearly remember I was in Punjab, Amritsar, and it was, I think it was 1993. I must be only 3 years old, and तब मैंने शायद अंडरटेकर का पहला मैच टीवी पे देखा था. और उसके बाद जो मेरे को क्यूरोसिटी हुई है, लाइक आई डोंट थिंक इट वाज any other wrestler, but Taker का मैच देखने के बाद I was more inclined to
I started watching wrestling, and then I started, going back to all the previous matches. तो जब मैंने देखा कि इन सर्वाइवर सीरीज में टेकर first debuted for WWE. Before that, he had a small stint at WCW also. I was just reading an article which I would like to share with the viewers. So अगर आपको याद हो, there was one guy called Giant Gonzalez, जिसके साथ Taker had fought in WrestleMania 6, who was like 7 feet 11 inches tall. So the story is that Taker, he actually left WCW for WWE because he didn't want to fight Giant Gonzalez in WCW. That's why he left WCW and he joined WWE. And when he joined WWE, after a couple of matches, he never thought in his wildest dreams that WWE में आके he will have to face Giant Gonzalez in WrestleMania 6. And Vince McMahon, he didn't give Taker any option for that. So it was like Taker has, in one of the podcasts, Taker said that, that was like, he was quite fearful of, wrestling with that guy. And he never thought in his wildest dreams that, he will follow him in WWE as well. And he'll have to fight him one day. So yeah, Taker ka agar aap dekho, so from the time from the Survivor Series time, that character, that that mystique character, फिर हमेशा स्टार्टिंग में जब आते थे, उनके जो मैनेजर थे पॉल बेरर, जो कि in wrestling he was known to be his father, his and Kane's father, but actual में he was the manager. So बहुत सारी memories है, like Taker and Kane brother. स्टार्टिंग में जब हम we were growing up, हमें लगता था दोनों भाई है, और टेकर ने केन को जला दिया था, और पॉल बेरर इनके डैड है. सो आई मतलब पहले तो इतनी फैसिनेशन होती थी कि जब सुनने में आता था कि अंडरटेकर इज फ्रॉम डेथ वैली, जहाँ पे कोई नहीं रहता, सब मरे हुए लोग रहते हैं. एंड Undertaker has died 7 or 8 times. Undertaker का एक भाई है, 7 बार like, मरा है, और केन का मुंह जला दिया था बचपन में. मुंह वो जला वाला भी दिया. रूमर बहुत ज्यादा फैला था. हाँ, तो और वो आई इतनी थिंक सारी स्टोरी मतलब लाइन का भी पार्ट था, आई एम प्रीटी श्योर. एग्जैक्टली ये सब स्टोरी लाइन का ही पार्ट था. बट बैक देन इन द डे, जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को इतना नहीं पता था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोरी लाइन. आज तो खैर सबको पता है कि WWE is scripted, it's all entertainment. Those are all part of storylines. कोई भी किसी की रियल वाइफ या वो नहीं होती, they are just manager or they are just assisting them. But back then, in the 90s or late early 2000s, हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें लगता था सब रियल हो रहा है. केन और अंडरटेकर भाई है, लड़ रहे हैं, जला दिया, मास्क डाल के आ रहा है. और अगर आपको याद हो, हम लोग 90s में कितने कार्ड्स भी खेला करते थे. Those memories, I mean, जितने कार्ड्स हमने खेले हैं वो टाइम पे, I remember wrestling cards, and उसमें every year नया वर्जन आता था, depending on who's the champion at that point of time. उसको नवरंग कौन होते थे. और I remember उसमें मैट हेनरी के स्टैट्स बहुत गड़बड़ दिए हुए थे, उनको 7 feet 4 दिखाया हुआ था कुछ कार्ड्स में. राइट, मुझे याद है. राइट, बहुत इंटरेस्टिंग था. आई नो, मतलब शायद कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे व्हाट एन इन्फ्लुएंस द गाय हैज हैड ऑन आवर लाइव्स, बट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जब मैंने पर्सनली जो पहला मैच, जब मैं जब सेंसेस में था, उससे पहले एवरीवन न्यू अबाउट द अंडरटेकर, बट जब मैंने पहला पूरा मैच देखा था, दैट वाज अ टाइटल मैच बिटवीन ऑस्टिन एंड अंडरटेकर. आई रिमेम्बर शायद ऑस्टिन जीते थे उसमें, बट द वे एंड जीतने के बाद भी उसके बाद अंडरटेकर बीट द हेल आउट ऑफ हिम. तो मैंने बोला है बंदा सही है. he couldn't win the, I think it was a title match, he couldn't win the title, but उन्होंने हारने के बाद भी इतना मारा, and Austin was always bleeding by the end of it. और I think initially तो WWF जब हुआ करता था, they themselves didn't come out in the open. वो कभी accept नहीं करते थे कि हम scripted है.
But I think जब वो Right. WWE हुआ, they exposed the fact that they are, because बच्चों पे काफी बुरा वो पड़ता था, लोग एक दूसरे के फिनिशर्स ट्राई करते थे लोगों पे, हमने सबने किए था, it's been a very हमने big part. सबने किए। मुझे एक चीज उससे याद आई फिनिशर से। back in school, I clearly remember when I was in 6th or 7th standard. तो मतलब we were so influenced by WWE, वो टाइम पे WWF. What happened was कि क्या कहते हैं, ट्रिपल एच की जो मूव थी पेडिग्री, वो मैंने एक लड़का था जिसके साथ मेरी काफी हमेशा लड़ाई हुआ करती थी स्कूल में। मैंने उसको ऐसे बाहर जो लॉबी होती है स्कूल की, वहां पे मैंने उसको पेडिग्री दे दिया था। एंड ही लिटरली गॉट बस्टेड। Oh shit. एंड उसके बाद जो मेरी फटी थी कि मेरे को लगा था कि मेरे को सस्पेंड कर देंगे या मेरे को पता नहीं बड़ी वो पड़ेगी। बट लकीली वो टाइम पे इतना कुछ हुआ नहीं और एवरीथिंग वाज गुड। लाइक उसको पट्टी वट्टी बांध दी थी। उसका नाम एक फ्रैंकलिन था, ही वाज अ कैथलिक गाय। मेरी उसके साथ बहुत लड़ाई होती थी, बट मैंने उनको बहुत पीटा था। अच्छा, बड़ा मजा आया था मुझे। अच्छा। और उसके उसके अलावा भी आई रिमेम्बर कि हम लोग जो बिल्डिंग में रहते थे वहां पे एक हमारे एक और मेरा एक दोस्त था कृष्णन, हु वाज अ बिग WWE फैन। तो उसके घर पे हम लोग थर्सडे को बैठते थे रॉयज वॉर देखने के लिए। वो टाइम पे Yes. इट वाज नोन एज Roy's रॉयज War, वॉर। yes, correct. और 2 घंटे 3 घंटे का शो होता था और हम लोग इतने इत्मीनान से बैठते थे और मजे लेके देखते थे कि इतना मजा आता था। एंड वी यूज्ड टू ट्राई ऑल दीज मूव्स। डेथ जो ब्रेट हार्ट का शार्प शूटर है, रॉक का रॉक बॉटम देना, Choke स्टोन कोल्ड slam. का स्टनर Choke देना, slam was my चोक personal स्लैम देना। या तो बहुत बहुत मजा किया है। यू नो बट अगेन जो टेकर है, टेकर की अगर आप हिस्ट्री देखो, ही वाज लाइक ही स्टार्टेड ऑफ एज अ बास्केटबॉल प्लेयर। वो यहाँ के जो हाई स्कूल बास्केटबॉल जो होते हैं, जो फर्स्ट लीग की टीम्स होती है, जो प्रोफेशनली जाके हु कम टू प्ले इन द NBA, वो उसमें खेला करते थे। एंड देन वन फाइन डे, एंड बास्केटबॉल जो यहाँ पे लीग 1 भी खेलते हैं यूएस में, दे गेट पेड लाइक गुड मनी। एंड वो टाइम पे ही वाज गेटिंग पेड नाइस, ही वाज गेटिंग अ गुड चेक। बट जो उनकी जो ट्रांजिशन हुई, ही वेंट फॉर अ कपल ऑफ शोज, और जहाँ पे रेसलिंग के काफी वहां पे एक टाइम इन द लेट 90s, इन द अर्ली 90s, काफी पुराने रेसलर्स अपने घर के बैकयार्ड में स्मॉल स्मॉल रिंग्स बना के ट्रेनिंग देते थे। हाँ जी। तो टेकर ने कैसे ही वेंट देयर एंड ही एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, एंड वहां से देयर वाज नो लुकिंग बैक। ही सेड दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू बास्केटबॉल, आई विल get into the wrestling business. And his dad, he was like literally shocked. He was like, he looked at him and said that there is basketball, because back then he was like almost 6'7" then also. तो अंडरटेकर के जो डैड थे, उन्होंने उनको कहा कि यू विल गेट पेड इन बास्केटबॉल, बट ये रेसलिंग में कहाँ घुस रहे, कोई है नहीं फैमिली में, व्हाई यू वांट टू डू दिस। And Taker was like very insistent कि this is where he wants to start off with. So it was really a great journey. अगर आपने उनकी documentary देखी हो, पृथ्वी, it was like, he has had some memorable matches against all the top superstars. बिल्कुल। I think the only one match in the making जो नहीं हो पाया is obviously with Sting, क्योंकि दोनों बहुत मिस्टिक कैरेक्टर्स थे। And Taker is obviously now 55 and Sting is around 59 or 60, and Sting had a neck surgery, so I don't Actually, think Sting, WWE. there was 1 year जब Sting wrestled for the WWE. That was the only year he was with WWE, और उसमें I think Exactly. Triple H के साथ Seth, he wrestled. Triple H और एक मैच था Seth Rollins के साथ जिसमें he actually injured It his was a neck. tag team, right? Yeah. Yeah, I remember that.
वो मैच में आई थिंक इन द टर्न बकल जो सेथ रॉलिंस अपना वो एक वन ऑफ द मूव्स देते हैं, पावर बॉम्ब टाइप उठाते हैं और टर्न बकल पे फेंकते हैं, वो मूव में आई थिंक स्टिंग इंजर्ड हिज नेक. हम्म, Otherwise, he had some, few matches left to compete, but unfortunately, जैसे ही वो WWE में आए after so many years, हम्म, he could only wrestle like 2 times, 2 or 3 times. That's it. no, But yeah, this match, नहीं, वन थिंग, अनदर थिंग आई वुड वांट टू आस्क यू, जैसे मेरा पर्सनल अंडरटेकर का, he's been in a lot of good matches, बहुत बड़े बड़े मैचेस, बहुत मेन इवेंट्स उन्होंने किए हुए अलग अलग पेपर व्यूज के. बट मेरा जो पर्सनल मैचेस इज those two matches he had with Shawn Michaels and during the Triple WrestleMania, H. जिसमें एक में उन्होंने उनकी वो करियर एंड किया था. इट वाज his streak versus his career. I think वो Right, जो right. matches थे, that was two legends. And obviously Shawn Michaels भी वो time पे he retired a little early. मतलब उनका he didn't go as long as Taker did. पर वो जो दो मैच हुए थे, एक तो उसमें बिल्डअप इतना ब्यूटीफुल था, और वो जो इन रिंग एक्शन था. आई थिंक द अंडरटेकर वाज आल्सो वेरी फिट. ही वाज इन हिज 40s, सो इतना ज्यादा उनके बॉडी पे वो लोड नहीं हुआ था, इतनी इंजरीज नहीं हुई थी. ऑब्वियसली he's always had an injury struck career. आप देखेंगे तो कोई भी रेसलर को आप उठा के दे दे, सबको बहुत मल्टीपल इंजरीज. सबको बहुत इंजरीज होती है, एंड obviously. ऑस्टिन को देख People, लीजिए, इतनी जल्दी रिटायर हो गए. आप देखेंगे तो right. रॉक भी एक पॉइंट पे अभी ही इज नॉट इवन अलाउड टू रेसल बिकॉज ही इज दैट बिगर स्टार, एंड दे आर स्कैर्ड कि अगर कोई रिंग में इंजरी हो जाए. Exactly. और Yeah, yeah. टेकर तो पता नहीं 30 years नॉन स्टॉप ही इज बीन फाइटिंग. एंड अभी भी पहले बीच में ऐसा आ गया था, हमें लगा ही ओनली अपीयर फॉर रेसलमेनिया, बट वो रेगुलरली साल में 3 4 5 मैचेस तो कैसे ना कैसे करके अकोमोडेट कर ही लेते थे. सो आई थिंक दैट Mhm. शॉन माइकल और अंडरटेकर वाला मैच, दैट वाज अ मैच आई थॉट दैट इट शुड नेवर एंड. वो जब मैं देख रहा था टेलीविजन पे, आई वाज लाइक wow man, this is something real. And फिर उसके अगले साल आई थिंक ट्रिपल एच के साथ भी हुआ था. आई थिंक दैट वाज इन अ हेल इन अ सेल मैच, और वो भी Yeah. बहुत तो अच्छा था. पहले 2 साल, सो दिस वाज, द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो टेकर ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी कहा है, एंड बहुत सारे अदर रेसलर्स हैव आल्सो सेड, जो शॉन माइकल्स के साथ उनका हुआ था रिटायरमेंट वाला मैच, करियर हम्म, वर्सेस स्ट्रीक वाला, जो सेकंड मैच था, हाँ जी. लाइक इन द कंसेक्यूटिव, या, तो जिसमें उसमें उन्होंने कहा दैट दैट मैच, टेकर वर्सेस शॉन माइकल्स, इज वन ऑफ द इफ नॉट द बेस्ट मैचेस, of Taker's career and also of Shawn Michaels' career. And having said that, it was, all a part of storyline. ये पहले 2 साल शॉन माइकल्स के साथ मैच हुआ, और बाद में अगले 2 साल ट्रिपल एच के साथ हुआ, क्योंकि ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, या एंड दे वांटेड टू तो कंटिन्यू द एक में स्टोरी शॉन लाइन. माइकल्स वाज अ स्पेशल रेफरी एज वेल, राइट? या, इन द हेल इन अ सेल मैच जो हुआ था, जिसमें जो हेल इन अ सेल हुआ था वो अगले साल हुआ था. हम्म, पहले साल जो ट्रिपल एच के साथ हुआ था टेकर का, हम्म, लाइक आफ्टर शॉन माइकल्स मैच, अगले साल जो रेसलमेनिया हुआ था, दैट वाज अ प्लेन नो होल्ड्स बार्ड मैच विद ट्रिपल एच, जिसमें बहुतों को अगर याद होगा, बहुत ग्रूसम मैच था, अराउंड 45 to 50 minutes मैच, and not many people know, but Taker couldn't get up on his feet, and he was stretchered off from ring, and he was taken to the hospital because that match was so gruesome. Taker couldn't actually get up on his feet. And उसके अगले साल हुआ Hell in a Cell match, जिसमें, which was one of the, like, for me personally, that was one of the best matches, and more than the Shawn Michaels match, because storyline ऐसे develop हुई थी. Shawn Michaels is the guest referee, Triple H है, and Undertaker, and they both are in Hell in a Cell. Hell in a Cell, जहाँ पे first time, Taker and Shawn Michaels squared off was in Hell in a Cell, जब Kane आए थे. उसके बाद, to get back to Hell in a Cell, जहाँ पे Undertaker और Triple H, who have, वो time तक they both have had, around 8 or 9 Hell in a Cell matches. So दो ऐसे लोग जो कि
Hell in a Cell matches के महारथी है, and they are gonna fight in the cell. And that match again, I remember, was around 50 minutes long. Amazing match. बीच में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे शॉन माइकल सुपर किक देते हैं टेकर को, और फिर ट्रिपल एच टेकर को पेडिग्री देते हैं, एंड जब काउंट होता है टेकर स्टिल किक्स आउट ऑफ दैट, एंड देयर इज वन मोर वेयर इन ट्रिपल एच स्लेज हैमर से टेकर को मारते हैं, एंड बट ही स्टिल सर्वाइव्स. तो वो मैच का जो इम्पैक्ट था, दैट वाज लाइक अमेजिंग. अगर आप उसकी स्टोरी लाइन भी अगर आपको याद हो, सो उसके पिछला वाला रेसलमेनिया था जब टेकर कुडंट गेट अप ऑन हिज फीट एंड ही वाज स्ट्रेचर्ड ऑफ. जब वो अगले साल आते हैं टू कट प्रोमोज एंड फॉर द बिल्ड अप टू रेसलमेनिया फॉर द हेल इन अ सेल मैच, व्हेन टेकर कम्स इन, जब टेकर की एंट्री होती है रेसलमेनिया में, केज पूरा बंद होता है, एंड जब टेकर अपना ये निकालते हैं, for the first time you see Taker with a bald look and what do you say, mohawk. Taker, mohawk, yeah. और Taker कहते हैं कि this is because because last year he couldn't get up and he didn't want any influence of that match anyhow, so that's why Taker कहते हैं प्रोमो में कि उन्होंने पूरे 365 days he has cut his hair. Every day he has chopped off his hair. Obviously that was part of a storyline, but it was such a compelling storyline कि आपको लगता था कि यार क्या ही होगा. And to have 3 साल consecutive, पहले 2 साल शॉन माइकल्स के साथ, 3rd year ट्रिपल एच के साथ, और फिर 4th year हेल इन अ सेल अगेन विद ट्रिपल एच, दैट इज लाइक वो. एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है पृथ्वी, वो जो 4 साल थे ना, उसमें आई थिंक टेकर्स बॉडी हैड टेकन अ लॉट ऑफ टोल, because all the 4 matches were like really very gruesome. I mean, they were exactly taxing on the body. और मुझे लगता है कि आई थिंक जब उनका उसके बाद डिक्लाइन आना शुरू हुआ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस जो थी, तो आई थिंक तभी उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रॉक लेसनर के साथ वो मैच होना चाहिए. और जो उनकी बिलवड स्ट्रीक थी, जो हमें लगा कि whenever he retires this will never happen. I have never seen a reaction like that to a match, because people always expected कि अगर Undertaker will lose his streak probably to Shawn Michaels because उसका career line पे है, probably to Triple H because he's a legend, and Brock Lesnar तब कुछ टाइम ही हुआ था उनको रिटर्न मारे. I think it was just couple of years, and they were like, ये तो obviously it's going to be a very tight match. Both of them are top athletes, but no one ever thought that the streak would end, because हमने ले लिया था वो granted कि ये streak रहेगी, चाहे वो retire हो जाए और matches हारे, Survivor Series, Summer Slam कभी भी हारे, पर WrestleMania में वो कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं आ सकते. वो जब हुआ तो मैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ था. And what was your I was not shocked. I literally cried क्योंकि I have been a big wrestling fan, and I have been following since the जैसे मैंने कहा 1992-93 से मैं follow कर रहा हूँ, and और मैंने सारे सबको पता था कि there were 2 streaks there. People always remember 2 streaks, not 1. लोगों को ज्यादा टेकर की स्ट्रीक पता है, but people don't remember Goldberg. Goldberg had an unbeaten streak of 174 matches. So that was in WCW. That is why लोगों को इसलिए याद नहीं है. इसलिए याद नहीं है. But the thing is कि Taker के जब obviously a lot of people know now that during the match, during the first 5 or 10 minutes of the match, Taker got concussed. Yes. And it was and Taker, I think जब ब्रॉक ने टेकर को हराया, it was on the 3rd F5 जो दिया था. And in the documentary, Taker has said that before the match, Taker asked Vince, what do you want? And Vince said that drop it to Brock Lesnar. The whole reason of dropping the streak to Brock Lesnar was from every storyline and everything was कि Brock जैसा actual में you can't deny it, but Brock is a once in a lifetime athlete. Okay, he's actually a super athlete for a heavyweight of that caliber, and agility जो है उनमें. Exactly. तो
एक डोमिनेंट जो फिगर रहता है, you Mhm. know, you couldn't have broken the streak through a, you know, lesser guy or say a Triple H or a Shawn Michaels, because they wanted him to, you know, get the streak broken in a way by a dominant figure, which was Brock Lesnar. तो दैट वाज वन रीजन कि उन्होंने ब्रॉक से उनकी स्ट्रीक हरवाई. ऑब्वियसली टेकर इनिशियली वाज नॉट हैप्पी, बट you know, Taker has always been a business guy, as in, you know, for the WWE business. And अगर आप उनकी documentary देखो, you know, even in the documentary, you know, I have got emotional couple of times because of his you know, friendship and loyalty to Vince McMahon. They are like literally like brothers. And Taker ने जो business के लिए किया है, like for Vince business, it's like commendable. Nobody can even come you know, compare to it. The level of loyalty, like लोग loyalty की बात करते relationship, और इसमें you can literally see the loyalty from business standpoint. तो इतनी बहुत सही डॉक्यूमेंट्री, मतलब मेरे को इतना मजा आया. आफ्टर द लास्ट डांस जो लास्ट डांस डॉक्यूमेंट्री थी माइकल जॉर्डन, आई थिंक दिस वन इज वन डॉक्यूमेंट्री which is like amazing. And you know, which gives you deep insights about Taker ke, you know, how he used to approach every match and what he felt about the wrestling business, you know, despite so many injuries, how he always used to, you know, show up. And uh, one more thing, you know, which because I don't know कितने लोगों ने documentary देखी है, but last ride में उन्होंने ये भी दिखाया है कि, you know, after the Triple H वाला match जो Hell in a Cell में हुआ था, right? उसके बाद, you know, because that was so, those 4 years were so amazing. Ideally, many people and many wrestlers wanted Taker to retire at that time, because बहुत एक ये हमेशा से issue रहा है, be it in cricket, be it in, you know, all the sports. The athletes, they don't know when to, you know, hang up the boots. बिल्कुल. Some people, they hang up the boots जब they are at their very low. Some people hang up their boots when they are at their peak, you know. In Shawn Michaels' case, which everybody discussed in the documentary, that Shawn Michaels was very happy when he hanged up the boot, because he had one of the best matches with Taker, and that's his last match, retirement match. So he was content. But Undertaker, unfortunately, he was fighting with his own demons. The last 5-6 years, उन्होंने बताया कि he was like in a very bad, because he was never content with his matches. He wanted one of the best farewell matches, just like how Shawn Michaels had, you know. Absolutely. And Taker, when he could have done it during Shawn Michaels or Triple H matches, but he still went ahead. And later on, अगर आप देखो, the matches were, you know, they were good, but they were not great, because he lost by Roman Reigns, he lost by Brock Lesnar. फिर बीच में उन्होंने एक दो मैच पंक और ब्रे वाइट के साथ किए. So उन्होंने ये दिखाया कि जो लास्ट 6-7 साल रहे हैं, because of the injuries and because of him being not content, you know, with the best match, he kept fighting, you know, he kept pushing his body, he kept fighting. और उन्होंने वही दिखाया कि कैसे एक स्पोर्ट्स एथलीट को, या कोई भी एक एथलीट रहता है, you know, he doesn't know when to hang up the boots. तो I think you know, a really Goldberg वाला match जो था, that was when he sort of realized के, you know, I can't, that match is never going to happen. Or not exactly. that it was his last game, but I think he realized money मन में के, you know, अब जो level of performance में एक time पे I used to take it for granted, that's not going to happen anymore. और उसके बाद उनने जो खेले, I mean the matches he participated in were also very few. और ऐसा कुछ memorable match जो उनका last, अगर मैं कहूँगा, आई थिंक जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था, बिकॉज इट वाज मोर ऑफ अ नॉस्टैल्जिया थिंग, वो एक टैग टीम मैच हुआ था डीएक्स और अंडरटेकर और केन का. आई थिंक दैट वाज द लास्ट मैच जो मेरी अच्छी मेमोरी है जिसके बारे में. But you won't believe, Prithvi, the irony is that was the worst match they have shown in the documentary. In terms of उसमें in-ring action, it was very bad. It was very bad. But it was very bad. वो मैच में अगर आप देखो, शॉन माइकल्स गेट्स बस्टेड ओपन राइट इन द बिगिनिंग, टर्न बकल पे लग के केन का मास्क उतर जाता है,
और that match is like really pathetic क्योंकि all the four are like almost retired, they have like उनका जो starting वाले days, they are all gone, they are all old now. No, but And I'm just, वो ऐसी चीज होती है, you're just glad that happened once in a lifetime. You may not exactly, go back and watch it again, but वो एक जो right, तसल्ली रहती है ना, the icons who were still alive, who were still in the game, right, coming back together right. for one last dance. Obviously, it is not going to be like what it was back in the day, but the very fact that it happened, और मुझे लगा नहीं था कि शॉन माइकल्स कभी वापस आएंगे. That was the biggest factor in that, and I think even Right. in that match he was the best performer out of the lot because because उन्होंने अपनी बॉडी को इतना पुश नहीं किया जितना बाकी एथलीट्स ने किया और उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी. आई थिंक इवन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट ही वाज द फिटेस्ट ऑफ द लॉट मेरे ख्याल से. Yeah. बट और उसके बाद भी अगर आप पृथ्वी देखो, so why finally why Taker announced his retirement, in the documentary is because finally, he got a match with AJ Styles, जो last match था उनका WrestleMania, ये वाले WrestleMania में हुआ, which was, अगर आप मैंने यहाँ पे reviews देखे थे, people loved that whole format, it was more like a film. क्योंकि उन्होंने बताया जैसे फ्लोरिडा में जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर्स है परफॉर्मेंस सेंटर, उससे जस्ट 30-40 मिनट्स दूर एक उनको एक सेक्लूडेड वेयर हाउस मिल गया था जहाँ पे दे शूटेड द होल स्टफ, द बोनयार्ड मैच. एंड अगर आप देखो इट वाज सच अ होल स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज वेरी एंटरटेनिंग. या और अगर आप देखो जो पूरा बिल्डअप भी जो था, with the promos and all, AJ Styles went personal, he called out Michelle McCool जो टेकर की वाइफ है, and it was like really personal. And जब promos में जब personal हो जाते हैं, and that too with Taker, and so Taker very well, he said in the documentary that was a perfect opportunity for him to bring the Mark side, to bring the old Undertaker side, and to bring the badass जो Taker रहे हैं, जो हमेशा bike वाले. Exactly. So he brought all those three sides for that particular match because it was personal. तो वो अपना husband वाला side लेके आए to defend his wife's honor. फिर वो जो बोनियार्ड मैच था तो वो ओल्ड सबको पता है, कास्केट बोनियार्ड मैच होते हैं. और बरीड अलाइव मैच ओल्ड अंडरटेकर के हिसाब से. या और जो बैडएस वाला था वो फाइनली वो आना ही था बिकॉज he had to he's ultimately a Texas boy, he's a redneck. तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो वैसे ही बहुत ज्यादा they are अमेरिकन बैडएस वाला जो persona था, American badass. Yeah, exactly. And क्योंकि like it's very obvious when a person is if it's his last match in his head, उनको पता है, तो he would want to come with all characters, right? ऐसा नहीं होना चाहिए था कि लोगों को लगता है कि यार चलो ठीक है रिटायर हो गए, बट एक बार we could have seen the American badass character. Although to be very honest, मेरा तो उनका least favorite character था वो. The only thing बचपन में fascinating लगता था because वो हार्ली डेविडसन पे आते थे और वो टाइम पे हमें लगता था बॉस क्या बाइक है. उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है पृथ्वी. द थिंग इज बहुत सारे लोगों ने उनकी प्रशंसा की बिकॉज सी द कैरेक्टर विच अंडरटेकर वी न्यू, राइट, द जो टेकर का कैरेक्टर था, सी कभी कभी कैरेक्टर इतना ज्यादा लंबा चल जाता है, इफ इन हिज 30 years you have to sometimes change the character, otherwise it becomes very boring, right? So बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे अपना वो स्विच किया था बैडएस का, which was during the एटीट्यूड एरा, क्योंकि एटीट्यूड एरा वाज वन ऑफ दोज एरास जहां पे लोग कुछ भी कर रहे हैं, मूवफट है, गालियां दे रहे. इट वाज लाइक डीएक्स था, राइट? आप देखो जब एटीट्यूड एरा शुरू आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाला कैरेक्टर बना था इनिशियली, देन ही स्विच बिकॉज़ ही दे आल्सो रियलाइज कि वो टाइम पे ऑस्टिन था, रॉक था, ट्रिपल एच था जो अपने पीक पे थे, and they needed some change with Undertaker because it was getting monotonous. But जो मुझे उसकी सबसे बेस्ट चीज लगी 2004 में when he came back,
उसके बाद जब वो ऑरा जब वापस आया ना, वो जो उसका इम्पैक्ट था दैट वुडंट हैव बीन देयर अगर वो 4 साल वो अमेरिकन बैडएस वाला वो नहीं करते। और आप अगर अंडरटेकर का कमिटमेंट देखेंगे तो आई मीन उन्होंने जब भी वो अपने अंडरटेकर के कैरेक्टर में रहे हैं, उन्होंने कभी भी कैरेक्टर ब्रेक नहीं किया है। तो बहुत बार होता था कि बहुत लोग इंटरव्यूज देते थे बाहर, वंस इट ऑल केम आउट इन दी ओपन और सब सोशल मीडिया पे आ गया था, तो बहुत लोग बाहर जाके एज देम सेल्फ। सो अगर मैं स्टोन कोल्ड बन रहा हूँ तो एज स्टीव ऑस्टिन में एक इंटरव्यू दूंगा और मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूंगा। अगर मैं शॉन माइकल हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूंगा। बट ही इज वन गाय जिनने आई थिंक 1 या 2 इंटरव्यूज अपने पूरे करियर में दिए होंगे ब्रेकिंग कैरेक्टर, वरना वो राइट देखते नहीं थे। दैट वाज हिज कमिटमेंट टू द कैरेक्टर ऑफ अंडरटेकर, एंड दैट इज व्हाई अगर आप कोई भी जनरेशन के आदमी को बोलो कि सिर्फ अगर एक रेसलर का नाम लेना है तो अंडरटेकर विल बी द फर्स्ट नेम ऑन ऑल द पीपल्स माइंड, बिकॉज उन्होंने एक जनरेशन को नहीं सारी जनरेशन को अफेक्ट किया। पीपल हु आर 50, 60, 70 वो भी शायद अफेक्टेड है, एंड पीपल हु आर प्रॉब्ली 10, 12 उनको भी काफी कुछ पता होगा। एंड और एक रीजन है जो हमने मेंशन नहीं किया, बट आई थिंक आई नीड टू मेंशन इट। वो अक्षय कुमार की जो मूवी आई थी उसकी वजह से भी इंडिया में हाँ काफी फुटेज मिली थी। काफी फुटेज में राइट खिलाड़ियों का राइट खिलाड़ी, उसमें वो फेक वाले थे जो उनके कजिन है राइट who had come into the WWE also for WWF also for a match against him। तो वो भी स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग थी। बट जस्ट टू सम अप व्हाट गोज, अगर आप ऑब्वियसली आपने तो सारी डॉक्यूमेंट्री देखी है, मेरे 1-2 एपिसोड रह गए, तो आई जस्ट वांट यू टू summarize के just to close this के what actually went into creating the character and sustaining it for 30 years, because आज भी जब उनका एंट्री म्यूजिक बजता है, even if he comes back not as a wrestler but just for a appearance or something, I think वो जो aura create होता है और जिस हिसाब से I think he has the longest entry of all time। उनकी 2.5-3 मिनट तो एंट्री चलती है और लोग उनकी एंट्री में ज्यादा वो रहते हैं। देयर वाज अ टाइम कि राइट बेकार मैच हो रहा होता था तो आपका सारा दिमाग एंट्री में जाता था। ही वाज दैट गुड। सो राइट actually goes into the thing not of the story but story line के हिसाब से what did he do right कि वो इतने आइकॉनिक बन गए। क्रिएटिव एस्पेक्ट क्या था, ऑब्वियसली बिकॉज द कैरेक्टर दैट वाज क्रिएटेड, आई थिंक वो मीन मार्क कैलिस करके उनका पहला कैरेक्टर था इन WCW, दैट डिडंट रियली वर्क वेल। बट जब से उन्होंने WWF ज्वाइन किया तब से लेके आज तक सेम कैरेक्टर। सो व्हाट डू यू थिंक वेंट राइट? वो मिस्टिक वाला एलिमेंट था, एंड what do you think his legacy will be in the next 20 years जब हम बुड्ढे हो जाएंगे and we'll be looking back at this time? So I think Prithvi, the best part, जो उनके कैरेक्टर के साथ बहुत रेजोनेट करता था was obviously the mystic side, but at the same time, he जब बंदे का कैरेक्टर इतना मिस्टीक रहता है, it is not easy to break the character, and he is one of the few wrestlers who never broke the character. Just recently I think उन्होंने अपना कैरेक्टर ब्रेक किया था जब वो Austin, रेसलमेनिया में नहीं रोमन रेन से हारे थे ना जो 2 साल पहले, वो मैच में ही लाइक उन्होंने अपना सब कुछ ऑब्वियसली दैट वाज लाइक काइंड ऑफ उन्होंने उनको लगा था दैट वाज हिज लास्ट मैच जहाँ पे उन्होंने अपने जैकेट ग्लव्स सब कुछ रख दिया था। yes, एंड देन ही किस्ड हिज वाइफ मिशेल जब वो रिंग से जब जा रहे थे, शी yeah, वाज इन द फर्स्ट रो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही ब्रोक हिज कैरेक्टर, बट उसके पहले इतने सालों में 28-29 सालों में ही नेवर ब्रोक हिज कैरेक्टर। और apart from that, one more major reason is he was such a giver, like उन्होंने कहा है कि he was such a loyal guy to Vince, to the business. He never thought of switching from one promotion to another promotion. He always stuck to WWE. He always क्योंकि Vince has a lot to say in the creative aspects of WWE. So he was always backed by Vince creativity, बिल्कुल, and obviously जब कैरेक्टर इतना बड़ा हो जाता है, इतने सारे रेसलमेनियाज लाइक 2021 WrestleManias till 2021 WrestleManias he was undefeated.
यू नो हर रेसलमेनिया में जब मैच होता था हमें लगता था कि ओके अब हारने ही वाले, जब कोई दूसरा ऑपोजिट बंदा जो उनका ओपोनेंट रहता था उनको मेन मूव देता था एंड हमें लगता था ओके अभी खत्म होने वाला एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू किक आउट एंड ही यूज्ड टू विन। Yes. सेम हमें ब्रॉक लेसनर वाले में भी लगा था कि ही विल डेफिनेटली विन, जो मर्जी हो जाए ही विल विन, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट एक्चुअली क्या कहते हैं he lost and everything was like done and dusted। तो उसमें भी बहुत एक बड़ी चीज है कि जो सब लोगों ने कहा है, जो सब रेसलर्स ने कहा है, अंडरटेकर वाज ऑलवेज समवन हु ऑलवेज यूज्ड टू पुश द न्यू जनरेशन ऑफ रेसलर्स। अगर आपको याद होगा जब जॉन सीना आए थे स्टार्टिंग में, इन द अर्ली 2000 जब जॉन सीना आए थे, बिल्कुल। जॉन सीना हैड अ मैच विद कर्ट एंगल and after that match, पहला मैच ही था, even though John Cena lost, but Undertaker, he gave John Cena a good high five and said that well done, nice match। जब ऐसा इतना जब पुराना एक हाँ लेजेंड आपको पुश करता है तो आपका जो मोरल है काफी हाई होता है। एंड नॉट ओनली जॉन सीना, इट हैज बीन लाइक ही हैज पुश्ड मोस्ट ऑफ द स्टार्स लाइक कर्ट एंगल को भी उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत पुश किया था, क्रिस जेरिको, ऑब्वियसली शॉन एंड ट्रिपल एच के साथ अमेजिंग मैचेस रहे हैं, ब्रेट हार्ट के साथ स्टार्टिंग में इन द अर्ली 90s काफी अच्छे मैचेस रहे हैं, ऑस्टिन के साथ काफी अच्छे रहे हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट दैट ही हैज बीन पार्ट ऑफ बेसिकली टू एरास। ही वाज पार्ट ऑफ द पुराना एटीट्यूड एरा, उसके पहले वाला एरा, एंड नाउ इन द न्यू एरा आल्सो ही वाज थोड़े टाइम तक ही वाज पार्ट ऑफ इट। तो इतना बंदा सस्टेन तभी कर सकता है if the person keeps rediscovering within the character। So the best part I feel was ki during the Attitude Era when he had that switch to American Badass, that was a good welcome change। उसमें थोड़े वो free और liberate हो गए थे, और फिर उसके बाद again when he came back to the old Undertaker वाला form, so that was again very well taken। So basically changes and हर interval में एक changes आए हमेशा, और हमेशा हर wrestlers के साथ उनके बहुत अच्छे matches रहे हैं, और हर like they actually call him the locker room leader। अगर एक बंदे को तब वो कब बोलते हैं जब people they actually respect the person a lot, right? वो उनकी हर बात मानते हैं। So obviously he was he ticked all the boxes। That's why I think he's one of the most amazing characters। He will definitely be a legend। And again, it's like in the WWE business, it's never say never। You can always come back। But obviously अगर आप टेकर की वो whole documentary देखोगे तो it's quite evident that he doesn't have any intentions of coming back। He's done। But he also said that if Vince gives a call and if it's really necessary, he will definitely come back। So this shows that even after 30 long years, he's still so loyal to Vince that अगर आगे जाके कभी कुछ जरूरत पड़े तो he will definitely come back for that last match। And not to forget here, Taker and Michelle की जो daughter है, she's pretty young। And Taker has said that he wants to spend more time with his children। So I think that's it। And there's no point in 33 decades is a long time। There's no point in उसको और खींच के drag करो when your body is not giving that साथ। So I think it's a perfect time। The documentary is amazing। I would encourage everyone to watch it to get more insights about Taker। And I think yeah, that's about it। So I hope we've been able to do justice, because obviously a career spanning 30 years एक वीडियो में तो sum up नहीं किया जा सकता, but we tried to pick and choose, cherry pick the good parts of his career, and the great fights and the kind of person he was off camera। And I remember that whenever there was a dressing room beef, he was always the one जो बाहर आके उसको squash करते थे। तो
वो जो उनको ड्रेसिंग रूम लीडर इसलिए बोला जाता था, उनका विंस मैकमैन के साथ जो रिलेशनशिप था. सो ऑल इन ऑल अगर आप इसको सम अप कर दो, तो आई थिंक if not the greatest, he definitely is one of the greatest wrestlers of all time, who's, you know, beat from, and you know, बहुत चीजें जब आप डिस्कस करते हैं उनकी इन रिंग एबिलिटीज भी मिस आउट हो जाती है, बट आई थिंक इन द रिंग आल्सो ही वाज अ मॉन्स्टर. His speed, his strength, his agility for the size he was, you know, जिस हिसाब से वो करते थे, it was absolutely unparalleled. So I think इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते. We would just, I know this is not a sport in general, but we couldn't stop ourselves from talking about him. I hope आपको ये वीडियो पसंद आए, and if you like it, please you know, click the like button, and if you like the content that we're posting, please press the subscribe button. And that's about it from us today. All right, Saib, let's just sign off. Thank you so much. All right. And thank Yeah, you for your thanks. insight. You know, आपने काफी in-depth knowledge है, इसलिए मैंने ये वीडियो के लिए I chose you because I knew that you're a big wrestling buff, and आपको you know छोटी-छोटी details पता होंगी जो शायद हमारे viewers और मुझे भी बहुत सारी नहीं पता थी. So thank you for enlightening all of us. So that's All about it. right. Thank you so much.